Assalamu alaikum. Yes, Aslan. Today we will discuss refreshal integrity, that is the chapter of database AS 9618. So, in which we will discuss refreshal integrity. Refreshal integrity basically there is a rule in a database. Basically, that ensures the relationship between remain valid and consistent. Mean your relationship between whatever that you are having entities from one end table to another table, it should be valid. It should be valid as well as it should be consistent. So it's called a refreshal integrity. So it's, let's suppose in a one table it refers to a record, in other record or in another table. So basically it uses a foreign key. It uses a foreign key. For, let's suppose, the unique field is called primary key, but whenever you refer the same things in other table, it will become the foreign key. It will become the foreign key. So that basically that refers record must actually exist. Means your primary key part, it must be exist in your other table. So it will call reflectional integrity. So such like that you will just see that कि आपके टेबल की, आपके डाटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी. ठीक है. एक्यूरेसी कैसे कि सेम वही चीज है. कंसिस्टेंसी कैसे कि अदर टेबल के अंदर वो वैलिड है, वो एक फॉरेन की फॉर्म में लेट्स सपोज वहां पे पड़ा हुआ है. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक टेबल की. लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट टेबल की. स्टूडेंट टेबल के अंदर दो चीजें हमारे पास है. एक हमारे पास क्या है, दैट इज स्टूडेंट आईडी, और दूसरे एंड पे हमारे पास क्या है, नेम्स. दो चीजें हमारे पास है. ठीक है. अच्छा, दूसरा टेबल हम लोग लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इन दोनों में मुझे बताइए प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी है या नेम है? यस, स्टूडेंट आईडी विल बी अ प्राइमरी की. ठीक है. अच्छा, क्योंकि नेम जो है बेसिकली वो इतना खास चेंज हो सकता है. ठीक है. स्टूडेंट आईडी विल बी अ डिफरेंट और यूनिक है. So you will see that you having another table in which that you are having enroll ID. Okay, in which that you are having student ID. Okay, and one of them that the field that you are having course. So now look, what it will become the same thing that you are having in this table and this table. Both are the student ID. So in one table it become the primary key. In other table it will become the foreign key. It will become the foreign key. Now you will see that your thing that you're talking about student IDs, total student IDs are 2. Now in other table they both are exist, but one of them that is additional, so it will call, let's suppose, invalid. It will call invalid. What will be the valid case? That all student ID values in, let's suppose, enrollments, all values will be in enrollment exist in a student table as well. In a student table as well. So there are just two. So third one will be the invalid. Clear? So what does mean by refreshal integrity? होना चाहिए. Let's suppose that you are having, बेटा एक टेबल है आपके पास स्टूडेंट के नाम का. उसके अंदर आपके पास दो फील्ड हैं, एक स्टूडेंट आईडी है, दूसरा नेम है. एक स्टूडेंट आईडी है, दूसरा क्या है, दूसरा नेम है. ठीक है. अच्छा, स्टूडेंट आईडी को आपने बोला कि ये प्राइमरी की है. ये क्या है, प्राइमरी की है. और अदर वन जो है वो आपके पास वो नेम है. अदर वन हमारे पास क्या है, दैट इज नेम. एक और टेबल लेते हैं जिसका नाम है इनरोलमेंट. इनरोलमेंट के अंदर तीन हमारे पास फील्ड है. कौन कौन सी है भाई? इनरोलमेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है. अच्छा, अब यहाँ पे तो ये क्या था, पहला टेबल था तो इसमें प्राइमरी की बोला. अब जब ये दूसरे टेबल के साथ लिंक कर रहा हो, या दूसरा टेबल आपके पास सेम चीज दूसरे टेबल में पूछी गई हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फॉरेन कीज. उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन की. उसको हम बोलते हैं फॉरेन की. ठीक है. अब इसके अंदर आपके पास जो फील्ड्स के स्टूडेंट आईडी के अंदर जो डाटा पड़ा है,
वो ये वाला पड़ा है प्रीवियस टेबल के अंदर। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये कैसे आपके पास वैलिड केस कैसे कराएगा कि अगर आपके पास तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो अवेलेबल हो कहाँ पे, इनरोलमेंट्स के अंदर जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, जो कि एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब क्या स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना। तो ये केस बेसिकली हमने समझना था, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। ठीक है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि डाटा आपका वैलिड है, कंसिस्टेंट। वैलिड होने के साथ साथ 1 2 स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल तो है, लेकिन क्या कंसिस्टेंट रहते हैं, क्या वो यहाँ पे लेट सपोज आप जो फॉरेन की आपने बनाया है वो आपके पास यहाँ पे कंसिस्टेंट भी रह रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रह रहा, वैलिड तो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब कंसिस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इट विल बिकम द रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। नाउ क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप। किसकी बात करेंगे? एंटिटी रिलेशनशिप। तो एंटिटी रिलेशनशिप में हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे रिलेशनशिप 1 to 1। 1 to 1 को हम लोग कैसे लेट सपोज डील करते हैं? बाय अ लाइन, सिंगल लाइन, मतलब 1 to 1 एम्प्लॉय एक हो सकता है और एक ही एम्प्लॉय हो सकता है, एक ही ऑफिस में काम कर रहा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 to 1। क्या बोलेंगे? 1 to 1। इसका सिंबल भी हमारे पास दैट इज सिंपल लाइन। ठीक है। अच्छा, 1 to many, मतलब वन टीचर है लेकिन उसके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये मैनी का साइन है, मैनी। ठीक है, तो 1 to many, एक टीचर के एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो हम लेट सपोज हम उसको नाम दे रहे हैं दैट बिकम 1 to many। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिंबल जो है दैट इज many to 1, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर के पास पढ़ रख सकते हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको बोल रहे हैं दैट इज देयर इज many to 1, many to 1 टीचर। ठीक है, many to 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास many to many, मतलब लेट सपोज आपके पास कोई कस्टमर्स है। ठीक है, डिफरेंट कस्टमर्स। अब शॉपिंग मॉल के अंदर लेट सपोज ईद का रश बढ़ रहा है, तो वो क्या बहुत सारे कस्टमर्स, क्या जरूरी है कि वो एक एक प्रोडक्ट लेंगे? वो डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि शॉपिंग मॉल में जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज लेके आ जाएंगे बहुत सारे लोग। ठीक है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो मैनी लेट्स सपोज कस्टमर्स कैन बाय many or a multiple products as well, so this will be an example of many to many as well। अच्छा, नेक्स्ट, अब जिस तरह लेट्स सपोज क्वेश्चन बेटा आपके पास ये आता है कि इस तरह से आपके पास बना हुआ है रिलेशन कि भाई ये है नर्स अवार्ड। अब नर्स आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये किस चीज का साइन है? मैनी। और ये क्या है? सिंगल। सो many to 1, तो रिलेशन आपके पास क्या है? 1। ठीक है, एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड नर्स लेट सपोज जो है दूसरे केस में दिखा रहा है मैनी वार्ड, मतलब एक या एक से ज्यादा नर्सिंग है, एक से ज्यादा, दीज आर द मैनी, मैनी नर्सेज कैन बी विजिटेड मैनी वार्ड एज वेल। सो मैनी टू मैनी का ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है? मैनी टू मैनी। ऑल क्लियर? ये साइन समझ आ गए, रिलेशन समझ आ गए होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स टूल्स के बारे में। ठीक है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट टूल के बारे में। ठीक है। अच्छा, तो टूल से मुराद क्या है कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है हमारे पास जो हेल्प करता है आपके पास क्रिएट करने में, मैनेज करने में और डेटाबेस को एक्सेस करने में। तो हम उनको क्या बोलते हैं? डीबीएमएस टूल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल से क्या मुराद है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ सॉफ्टवेयर जो कि क्या है? दैट कैन हेल्प विद द क्रिएशन
ठीक है, मैनेजमेंट एंड एक्सेस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब जो डेवलपर, इस पे हम लोग टूल पढ़ेंगे, देयर इज डेवलपर इंटरफेस। डेवलपर इंटरफेस से मुराद क्या है बेटे आपके पास? बेसिकली दीज आर द सम कमांड्स, दीज आर सम कमांड्स, जिसको हम ये बोलते हैं कि बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ टूल्स, कमांड्स एंड programming interfaces and programming interfaces that allow software, जो कि लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर को अलाउ करे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अलाउ करे कि वो इंटरेक्ट करे डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करे किस पर्पस के लिए? कि लेट्स सपोज वो डेटाबेस को बनाए, उसको टेस्ट करे, उसको मेंटेन करे, जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपर इंटरफेस। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इसके हम ये कह रहे हैं कि डेवलपर जो है वो इंटरफेस करे बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग कमांड्स, बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग कमांड के साथ वो एप्लीकेशन जो हमारे पास है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है, उसके साथ वो इंटरेक्ट करे। इंटरेक्ट करके क्या काम करे जी? इंटरेक्ट करके वो जनाब डेटाबेस को लेट्स सपोज क्रिएट, मतलब बिल्ड करे, टेस्ट करे, मेंटेन करे उन तमाम एप्लीकेशन को, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। डेवलपर और डेटाबेस इंजन के दरमियान में हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ ब्रिज, दिस इज अ ब्रिज लेट्स सपोज। सो कैसे ब्रिज बन सकता है? कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है वो इसको देते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी है इसको देंगे, हम क्वेरी को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर रिट्रीव करेंगे एंड मैनिपुलेट करेंगे डाटा को। रिट्रीव एंड वी कैन रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द डाटा। और ये अभी एक चीज हमने अभी अभी भी पढ़ी है, दैट इज इंटीग्रेट डेटाबेस इनटू एप्लीकेशंस, ठीक है। इंटीग्रेट करेगा डेटाबेस इनटू द एप्लीकेशंस, कि डाटा लेट सपोज जो आपके पास है उसको चेक करेगा कि लेट सपोज जो हमारे पास वैलिड है इनटू द डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक दैट। सो इंटीग्रेट, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो लेट सपोज चेंज हो रही है, रिडंडेंट हो रही है, ठीक है, इट विल चेक एज वेल। सो नेक्स्ट, जो हमारा क्वेरी का प्रोसेस है, क्वेरी का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल की जो एक क्वेरी है उसको जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं डाटा को, जो कि लेट सपोज क्वेरी के अंदर क्या करते हैं, डाटा को सर्च करते हैं कि जो कि हमारी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के को फुलफिल करे, ठीक है। लेट सपोज हमारा एक सर्टेन क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करें, ठीक है। लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि जी आपको जी एडमिशन चाहिए यूके के अंदर, तो आप लोग उसी तरह से जो है लिखेंगे, लेट सपोज सेलेक्ट, और उसके बाद लेट सपोज आपके पास एडमिशंस हैं अवेलेबल, लेट सपोज, तो आप लेट सपोज यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है लिखें, आप लिखें, फिर आप कंट्री का नाम लिख दें उसके अंदर। तो सिलेक्ट कर लिया आपने फील्ड, ठीक है। फ्रॉम डाटा आपने कहाँ से लेना है, टेबल का नाम लिखें, जहाँ पे आप बोले वेयर लेट सपोज यूनिवर्सिटी गिविंग द लेट सपोज इज स्कॉलरशिप इज इक्वल टू यस, लेट सपोज आप लिख दें कि जहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखा दे, तो वो आपको दिखा देगा। फिर आप उसको बोले ऑर्डर में दिखाए मुझे, ठीक है, मुझे लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, या अंटार्कटिका जाना है, तो इस तरह के वर्ड लेट सपोज कैपिटल लेटर ए में आ रहे हैं ना, तो आप उसको कहें ऑर्डर बाय जो आपकी स्कॉलरशिप्स हैं, आप फील्ड का नाम लिखें, आगे लिखिए असेंडिंग, कैपिटल ए एस सी, तो वो असेंडिंग में आपको शो करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि आप क्या कहें जी, क्रिएट करें एक एग्जीक्यूशन प्लान जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड्स बताए, ठीक है, और डाटा को फेच करे फॉर द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन क्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ कमांड्स लेट सपोज सेंड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इंजन को कि जो भी आपके पास डाटा होता है वो उससे हम लोग क्या ले सकें, रिजल्ट्स जनरेट कर सकें, ले सकें, रिजल्ट ले सकें, तो इट विल बी द एग्जीक्यूशन प्रोसेस एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डाटा डिक्शनरी भाई। अब आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक और फैसिलिटी आपको जो मिल रही है, लेट्स सपोज दिस इज अ डाटा डिक्शनरी, ठीक है। लेट्स सपोज एक डिक्शनरी क्या काम करती है
कि whatever जो भी आपके फंक्शन है, whatever जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके पास डाटा आपका पड़ा हुआ है टेबल के अंदर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी लेट्स सपोज आपको चीजें चाहिए, तो वो वहां पे पड़ी हुई हो, तो हम लोग उस सेक्टर के लिए, उस पर्पस के लिए एक डिक्शनरी जो है वो वहां पे रख देता है। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये स्टोर करता है तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अबाउट द डेटाबेस, डेटाबेस से रिलेटेड। लेट्स सपोज जितनी फील्ड्स हैं, कौन सी की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, ठीक है जी, फॉरेन की है, व्हाटएवर, इससे रिलेटेड सारी चीजों को वो अपने पास डेटाबेस में स्टोर कर रहा होता है। इसके अलावा साथ साथ बेटा ये क्या करता है, बताता है कि डीबीएमएस को, यूजर को, दैट किस तरह का डाटा लेट्स सपोज स्टोर किया है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, और हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इट टेल द डीबीएमएस यूजर व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, हाउ इट इज organized, and how it can be accessed. So it maintains database management system automatically as well. डिक्शनरी जो है, इस तरह से डाटा इंफॉर्मेशन आपके पास सारी चीजें पड़ी हुई होंगी, तो उसको क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा। नेक्स्ट, इट्स एक्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस। इट्स एक्ट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस, मतलब आप स्कैन नहीं कर लेते डाटा को, लेट्स सपोज आप एक उसकी कॉपी बना के नहीं रख लेते, इट विल गॉट अ ब्लूप्रिंट एज वेल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी डाटा डिक्शनरी। ठीक है। नेक्स्ट जी, सिक्योरिटी कैसे जो है, लेट्स सपोज बेटा जी आपको डीबीएमएस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर करता है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या करता है, इशू करता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या करता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड देता है। अब जब यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे पास आ जाए, तो अनवैलिड जो लेट्स सपोज अनऑथोराइज पर्सन है, वो तो नहीं आपके डाटा को एक्सेस कर सकता ना। तो इट विल बी स्टॉप अनऑथोराइज एक्सेस टू डाटा, स्टॉप unauthorized access to data. Next, strong password should be used. क्या यूज होता है, strong password should be used, strong password यूज होता है। नेक्स्ट वन, आपको ये राइट देता है, एक्सेस राइट, हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज एक्सेस राइट। सो व्हाट डज मीन बाय एक्सेस राइट, एक्सेस राइट से बुला रही है कि आपको ऑथोराइज पर्सन ही सिर्फ डाटा का एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके अलावा जी आपको जो फैसिलिटी है, दैट इज क्रिएट रेगुलर बैकअप। इट क्रिएट रेगुलर बैकअप इन केस आपका डाटा लॉस हो गया। ठीक है, तो आपके पास कॉपी ऑफ डाटा इट विल बी अवेलेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनक्रिप्शन ऑफ डाटा, दैट इज अ वेरी important and important rule in that is it encrypts your data. Means let's suppose if somehow your data stolen by someone, so no one could understand about your data, which type of data, what is data, okay? So it is an important thing in database management system that provides the, that ensures the security, that ensures the security as well. So this is the thing that we ensure regarding, we will discuss regarding database management system security. Now we are moving forward, and we will discuss about the normalization. So normalization is a very, very important thing in database, and it's just the thing in which we will discuss how to just manage well managed data. So we will discuss the normalization. We will discuss the normalization. So normalization, basically, that we are saying that it is a process of organizing data in a database for what, to eliminate redundancy, okay, and
ensure the integrity. Ensure the integrity. So as well as you can say that, what does mean by redundancy mean? It's just organized. It's just eliminate. It's just, let's suppose, finish repeated data. Okay. It's just, let's suppose, reduce the duplication as well. You can say that it reduce the duplication. It will be a simple word. As well as, and improve, or let's suppose we can write another definition here. So let's suppose we can say that another definition is, so another simple definition is, more definition is that it reduce basically, first of all, it organize the data. Database normalization, data is organized. Data is organized in a form. First of all, data is organized to reduce duplication and improve efficiency. Reduce efficiency as well. So how many type of normalization is? Three type of normalization. First normalization, second normalization, and third normalization. One NF mean first, third, second, two for two, and three for third normalization. So what are the benefits of, let's suppose, for the normalization is that, so let's suppose you can say that the benefits are, so benefits are it reduce data duplication, okay, improve consistency, and as well as it's easier to update. Easier to update. Now we will discuss about first normalization. So first normalization is that basically your each row will be unique. Your each row, first of all, it will be unique. Means you don't have any duplication row. You don't have any duplication row. So each field has a unique name as well. Okay. Each field has a unique name as well. Next, no repeated group of attributes. Okay, means your groups having not repeated in the attributes as well. So each field or a column holds atomic value. So what does mean by atomic value? Atomic value means no list, arrays, or multiple values be in a single list, single cell. Sorry. Okay, it should be a single entity. आपके पास single entity होनी चाहिए. Let's suppose आपके पास कोई name लिखा है तो वो name single होना चाहिए. Name के साथ father name नहीं होना चाहिए. ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. ठीक है.
तो सिंगल सेल के अंदर सिंगल डाटा होना चाहिए. सो देयर आर नो कॉलम्स विद रिपीटेड सिमिलर डाटा. ठीक है, कॉलम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा, विद द सिमिलर डाटा, एक ही तरह का डाटा और उसके एक से ज्यादा कॉलम हो तो फायदा नहीं है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन. अब ये देखिए, लेट्स सपोज दैट यू आर हैविंग द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज. You are having the list of first name, you are having the salary. So it is basically uh, employee number is, let's suppose you can say that this is a primary key, and each employee has one name, no more than one name, okay, and everyone having a single salary. Everyone having a single salary, so it will call a normalization. Next, look, there's employee number, okay, that's okay. This will okay. First name, okay. Salary, okay. Whenever we talk about the degrees, so there are the degrees that more than 2 degrees in a single row. So it will be a invalid for your first normalization. Clear? Am I clear about first normalization? अच्छा, आगे चलता है. सेकेंड नॉर्मलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सेकेंड नॉर्मलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे ना, तो उसके अंदर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन को वो रिपीट करता है कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन एड अप होती है. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन इट शुड बी अ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, मतलब आपके पास कोई भी ग्रुप जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. आपकी जो वैल्यूज हैं, इट शुड बी अटोमिक. इट शुड बी अटोमिक, ठीक है. मोर देन जो है ना वो 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा जी, आगे बढ़ता है. ठीक है. नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट. पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ना जी, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक से ज्यादा प्राइमरी की हो ना, तो आप समझें कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है. बात समझ रहे हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है. लेट्स सपोज हम, एक ऐसा शख्स है जो लेट्स सपोज अपनी अर्निंग खुद करता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने बाबा से भी ले रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ना. बात समझ आई? बात क्लियर है माय पॉइंट? ठीक है. ठीक एग्जांपल है. ठीक है ना. तो if the table has only a single column as a primary key, then it automatically satisfied second normalization. Okay, if the table has only single column as a primary key. बात समझ आई ना? हमने क्या कहा कि प्राइमरी की जो है एक से ज्यादा अगर हो तो वो डिपेंडेंसी बढ़ा देता है, मतलब यूनिकनेस बढ़ा देता है. लेट्स सपोज आपके पास स्टूडेंट आईडी है एक, और एक वो प्राइमरी की आपने इसको रख दिया. लेट्स सपोज आपने फिर एक और, लेट्स सपोज एडमिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे रख दिया कि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक और चीज का आ रहा है, तो वो अब स्टूडेंट जो है उसको दोनों चीजें चाहिए. ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी जो है, पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी. तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो है लेट्स सपोज नहीं होनी चाहिए, तो वो मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. तो वो मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. किसी भी डाटा को देखने वाले को समझ आ जाएगी कि इसके अंदर प्राइमरी की एक ही है, यही यूनिक डाटा है, यही यूनिक लेट्स सपोज फील्ड है. क्लियर जी? जैसे हम नॉर्मल नादरा में हमारे पास डाटा हो, तो नॉर्मल में डाटा लेट्स सपोज हमारे पास एक तो आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये समझें कि अब आईडी कार्ड नंबर था तो चीजें हमारे लिए आसान हुई. लेकिन आप एक और प्राइमरी की आगे लेट्स सपोज आपके पास आ जाते हैं, बायोमेट्रिक आ जाता है उसमें. तो अब बायोमेट्रिक भी दुनिया में दूसरा किसी का नहीं है, और जो आपका आईडी कार्ड है वो भी लेट्स सपोज पूरे मुल्क में वो सेम आईडी कार्ड भी किसी का नहीं है. ठीक है, तो अब दो प्राइमरी कीज हो गई ना भाई एक ही डाटा के अंदर. ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डाटा को कॉम्प्लेक्स कर दिया, हमारे टेबल को कॉम्प्लेक्स कर दिया. बात समझ आ गई बेटे? दैट दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल डिपेंडेंसी बन जाएगा. क्लियर है? लेट्स सपोज एक प्राइमरी की अगर हो, अगर हमारे पास एक ही प्राइमरी की हो, तो लेट्स सपोज स्टूडेंट आईडी है.
तो स्टूडेंट आईडी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है नेम, कंप्लीट डिपेंडेंट करता है रोल नंबर, कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है ब्रांच। ठीक है, तो एक ही प्राइमरी की है तो आप इसको कह सकते हो ये सेकंड नॉर्मलाइजेशन इस पे अप्लाई होती है, फर्स्ट भी होती है सेकंड भी होती है, फर्स्ट एंड टू एन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेट सपोज आपके पास लेट सपोज एक टीचर है और एक स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, अब लेट सपोज एक सब्जेक्ट आईडी पार्शियली डिपेंडेंट। अब लेट सपोज एक स्टूडेंट आईडी जो है वो सब्जेक्ट आईडी भी अगर साथ हो तो आपके पास क्या बन रही है, सब्जेक्ट आईडी भी है स्टूडेंट आईडी भी है लेट सपोज, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, पार्शियल डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है हमारे पास। क्लियर होगी बात, पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। अब लेट सपोज आपने क्या लिया, स्टूडेंट आईडी ले लिया, कोर्स आईडी ले लिया, लेट सपोज, और लेट सपोज हम इसमें ऐड कर लें एसटी नेम, स्टूडेंट नेम ले लिया। ठीक है जी, लेट सपोज कोर्स का नेम ले लिया, टीचर नेम ले लिया लेट सपोज। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो चीजें जो है हमारे पास अभी भी ऐसी हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज ये स्कोर आईडी की जगह ना इसको हम क्या कर देते हैं, जरा थोड़ा सा मोर पॉइंट क्लियर हो जाए, स्टूडेंट आईडी की जगह पे ना हम एक और कर देते हैं, लेट सपोज हमने कहा है कोर्स आईडी है। ठीक है, बल्कि हमारे पास इसको हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट आईडी और इसको हम लोग कर देते हैं दैट इज लेट सपोज कोर्स आईडी, जरा थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए। कोर्स आईडी हो जाए। अब देखिए दो चीजें हमारे पास जो है ना वो कॉमन हो रही है। ठीक है, दोनों प्राइमरी की बन रही है। कौन कौन सी प्राइमरी की बन रही है सर हमारे पास, हमारे पास जो प्राइमरी की बन सकती है वो क्या बन सकती है, एक तो हमने क्या कहा दैट इज कोर्स आईडी। क्या कहा हमने, कोर्स आईडी। ठीक है, दूसरा हमने क्या कह दिया, लेट सपोज स्टूडेंट आईडी। ये दोनों प्राइमरी की हैं। अब स्टूडेंट नेम जो है लेट सपोज डिपेंड्स करेगा ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी पे, और कोर्स नेम डिपेंड्स करेगा ओनली ऑन कोर्स आईडी पे। ठीक है, तो देयर इज अ बेसिकली अ पार्शियल डिपेंडेंसी, देयर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। सो पार्शियल डिपेंडेंसी को अगर रिड्यूस कर दें तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी को अगर रिड्यूस कर दें तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी अ सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ओके, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। सो व्हाट विल बी अ थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, व्हाट विल बी अ थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, सो इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इट शुड बी अ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, इट शुड बी अ second normalization as well, it should be a second normalization as well। ठीक है जी, सेकंड तो क्लियर हो गया ना। अब थर्ड में हमारे पास क्या है, इट शुड बी, हमने क्या कहा, इट शुड बी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन एंड इट शुड बी अ second normalization as well as it is a non key dependency। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या करे, डिपेंड करे ऑन नॉन प्राइमरी की, ऐसी की पे डिपेंड करे जो कि आपके पास प्राइमरी की नहीं है। क्लियर है ये बात, ऐसी की पे डिपेंड करे जो कि हमारे पास प्राइमरी की नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमरी की। ठीक है, लेट सपोज जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास आईडी कार्ड के अंदर लेट सपोज आपका आईडी कार्ड नंबर है और साथ बायोमेट्रिक आ गया। ठीक है, और लेट सपोज आपका एड्रेस भी है, तो ये उस चीज पे डिपेंड करे
जो कि प्राइमरी की नहीं है, लेट्स सपोज एड्रेस प्राइमरी की नहीं है, तो उस पर डिपेंड करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स। हम क्या बोलेंगे, द नॉन की एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ओनली ऑन द की, should only depend on a key, not on other key attribute। उसके अलावा किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर वो क्या ना करे, डिपेंड ना करे, तो इट विल कॉल्ड अ थर्ड नॉर्मलाइजेशन नंबर। इट विल कॉल्ड थर्ड, 3NF मीन थर्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है जी। तो इसको हम लोग एक और चीज भी हम लोग बोलते हैं कि एक और मैं साथ में एक चीज ऐड कर देता हूँ, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं, इट हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से मुराद ये होता है कि आपके पास एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है ना, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल दे दूं इसकी, मैं चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन another non key attributes rather than directly। बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं इसकी, भी आपको वेट करें, ऑन प्राइमरी की, ऑन अ प्राइमरी। लेट सपोज एग्जांपल देते हैं, हम कहें कि लेट सपोज A belongs to B, A dependent upon B, and let's suppose B belongs to C। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, let's suppose therefore A that is belongs to C, so it will call transitive। ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड एंड थर्ड एज वेल। तो इसके अंदर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है बेटे तो यू कैन आस्क।